Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth and the last part of the solutions to NCERT questions of the fifth chapter of class 11th chemistry, states of matter. In this video we will discuss solutions to exercise questions 17 to 23. So let's begin. 17th question is calculate the volume occupied by 8.8 grams of CO2 at 31.1 degree centigrade and 1 bar pressure. Pressure given है, temperature given है, mass given है, volume निकालना है. R given है 0.083 bar liter Kelvin inverse mole inverse. So we know PV is equal to small m upon capital M into RT, which is given mass upon molecular mass. So we have V equals to m RT upon capital M into P, जहाँ पे values given mass 8.8, R given 0.8083 bar liter Kelvin inverse mole inverse, temperature 31.1 degree centigrade, which is equal to 304.1 Kelvin, mass. Molecular mass of carbon is CO2 is 44 grams and pressure given is 1 bar. So values put कर देंगे सारी and we get volume equals to 5.04806 liters, it is 5.05 liters. So इतना volume occupy करेगा 8.8 grams of CO2 at 31.1 degree centigrade and 1 bar pressure. Next, 2.9 gram of gas at 95 degree centigrade occupied the same volume as 0.184 grams of dihydrogen at 17 degree centigrade at the same pressure. What is the molar mass of this gas? एक गैस की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, उसका मोलर मास पूछ रहा है, जिसका रिलेवेंस नहीं आ रहा है कि 2.9 grams of this gas at 95 degree centigrade occupy same volume as 0.184 grams of dihydrogen H2 की प्रॉपर्टी गिवन है at 17 degree centigrade at the same pressure. प्रेशर सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है और वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया डाइहाइड्रोजन ने वही वॉल्यूम इस गैस ने ऑक्यूपाई किया है. तो गैस का मोलर मास कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय डाइहाइड्रोजन कितना है, पहले वो निकाल लेते हैं. V इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT अपॉन P. वैल्यूज पुट कर देंगे. यहाँ पे हमको R जो है वो नहीं पता है, तो अपने वैल्यूज पुट करी जितने गिवन है 0.184 upon 2, it is small m upon capital M into R not given, T 290 upon pressure P. ये भी हमको नहीं पता है. इक्वेशन एक बन गई. लेट द मास ऑफ M be the molar mass of the unknown gas and V be the volume of the gas. So V unknown है, M unknown है, V equals to small m upon capital M RT upon P we know. अब यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है अगेन 2.9 गिवन है अपॉन कैपिटल M इंटू R not given into temperature 368 जो हमने बनाया 95 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, आ जाएगा 368 अपॉन P. तो दो इक्वेशन हो गई हमारे पास. अब इनको इक्वेट कर लेंगे एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट M इक्वल्स टू 2.9 इंटू 368 इंटू 2 अपॉन 0.184 इंटू 290. तो R जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से M आ गया 40 grams पर मोल. हेंस मोलर मास ऑफ द गैस, जिस गैस की हम वैल्यू निकाल रहे थे, द मोलर मास ऑफ द गैस इज 40 grams पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 bar pressure contain 20% by weight of dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen. Partial pressure निकालना है, 20% by weight of dihydrogen है, ठीक है. तो partial pressure निकालना है. So weight is given to be, let the weight of dihydrogen be 20 gram and weight of dioxygen is 80 gram. dihydrogen है, dioxygen है. So पहले हमने डाइहाइड्रोजन का निकाला 20 ग्राम और डाइऑक्सीजन का निकाला 80 ग्राम्स. 100% में 20% है, so by that we make 20 grams and 80 grams each. Then the number of moles of dihydrogen will be 20 upon 2, which is 10 moles, and number of moles of dioxygen will be 80 upon 30, which is 2.5 moles. दोनों के मोल्स पता चल गए. अब टोटल प्रेशर गिवन इक्वल्स टू 1 बार. सो वी नो कि एक का निकालना हो तो निकाल सकते हैं बाय नंबर ऑफ मोल्स. Pressure of H2 equals to number of moles of H2 upon number of moles of H2 plus number of moles of O2 into P total. तो वैल्यूज पता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 10 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 2.5 है. सो PH2 equals to 10 upon 10 plus 2.5 into 1, which is 0.8 bar. Hence partial pressure of dihydrogen जो निकालना था, which is 0.8 bar. Next, what would be the SI unit for the quantity PV square T square by N? इसकी SI यूनिट क्या होगी? तो सबकी SI यूनिट
पुट कर देंगे पी वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एन में पी की हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की हो गई मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट फॉर टेम्परेचर हो गई केल्विन, एंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज एन इक्वल टू मोल। अब इसकी सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन में। सो वी हैव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूबिक स्क्वायर जो कि वी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर विल बी केल्विन स्क्वायर अपॉन मोल। सो वी हैव न्यूटन मीटर पावर ऑफ 4 केल्विन स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट, in terms of Charles' law, explain why minus 223 degree is the lowest possible temperature. चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है कि -223 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 केल्विन इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? It was found that for all the gases at any given pressure, the plots of the volume versus temperature in degree centigrade is a straight line. If this line is extended to zero volume, then it intersects the temperature axis at -273 degree centigrade. जब lowest ले आते हैं, zero volume पे ले आते हैं, तो it intersects at -273 degree centigrade on the temperature axis. In other words, the volume of any gas at 273 degree centigrade minus is 0. This is because all the gases are liquefied before reaching the temperature of 273 degree centigrade. Hence, it can be concluded that -273 degree centigrade is the lowest possible temperature. So, जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी कि सारी गैसेस जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं रीचिंग एट दिस टेम्परेचर। तो जब वॉल्यूम ज़ीरो हो गया, बिलो वॉल्यूम ज़ीरो इज़ नथिंग इज़ पॉसिबल, तो इसलिए 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। यहाँ से हम देख भी सकते हैं प्रेशर है P1, P2, P3 and P4. We have temperature scales. So -223 जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं चला करके, तो जब लोवेस्ट इज P1 तो इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, एंड मैक्सिमम इज P4, प्रेशर सबसे ज़्यादा P4 में है तो वहाँ पर इफेक्ट कम दिखाएगा। लेकिन जब हम -273 पे आते हैं तो वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो वॉल्यूम से नीचे अगर इसको करेंगे माइनस में वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, इसलिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। Next, critical temperature for carbon dioxide and methane are 31.1 degree centigrade and -81.9 degree centigrade respectively. Which of these has stronger intermolecular forces and why? इनमें से stronger intermolecular forces किसके हैं और क्यों out of carbon dioxide and methane? So, higher is the critical temperature for the gas, easier is its liquefaction. जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ईजिली कोई भी गैस जो है वो लिक्विफाई होगी। दिस मीन्स दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज़्यादा उसके बीच में अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में। हैंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ CO2। CO2 का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है और मीथेन का माइनस में है, इसलिए फॉर CO2 जो अट्रैक्शन बिटवीन द intermolecular particles is stronger. Next, explain the physical significance of van der Waal parameters. van der Waal parameters जो है उनका physical significance क्या है ये बताना है। So van der Waal's equation is an equation of state for a liquid composed of fluid composed of particles that have a non-zero volume and a pairwise attractive इंटरपार्टिकल फोर्सेस van der Waal फोर्स जो वॉल्यूम करेक्शन दिए गए थे बाय van der Waal, यहाँ पे वैल्यूज़ थे P प्लस एन स्क्वायर A अपॉन बी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू NRT। अब यहाँ पे A और B जो कॉन्स्टेंट यूज़ हुए थे इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। तो A का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन द गैस। एक गैस के अंदर आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये A बताता है, जबकि जो B है दैट इज़ अ मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो वॉल्यूम है उसका कितना मेजर है दैट वो B से पता चलता है। और V जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में कंटेनर है उसका वॉल्यूम कितना है ये बताता है कैपिटल B। सो यहाँ से V माइनस एन बी जो है दैट मेक्स नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक मोल का वॉल्यूम कितना है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, ये सब हमको करेक्शन में लेना पड़ता है। देन वी कैन से दैट PV इज इक्वल टू NRT व्हेन वी टेक ऑल दीज वैल्यूज इनटू कंसिडरेशन फॉर एक्चुअल यूज़। तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।